तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने साल 2021-22 का फाजिल बजट पेश किया और बताया कि 1,46 करोड़ के तखमीने के बजाय इसमें इस मरतबा 63% का इजाफा करते हुए 2,30,000 करोड़ रुपए रखे गए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बहरान के बावजूद हुकूमत रियासत अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के काम को जारी रखेगी। रियासत का तीसरा बजट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत में साल 2020-21 के दौरान बुनियादी शोबे, ज़राअत और उससे मुताल्लिक़ शोबों में 17.7% की तरक्की हुई है। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि रियासत हुकूमत किसानों के कर्जों की माफ़ी के लिए 5,225 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। हरीश राव ने बताया कि खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3,000 करोड़ रुपए फ्री इंटरेस्ट लोन दिए जाएंगे। हरीश राव के बजट पर अपोजिशन जमातों ने शदीद तनकीद की और कहा कि यह सिर्फ कागजी बजट है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एजाज शुमार की हेरा फेरी की है और अवाम को जबरदस्त झांसा दिया है। ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీలకు ఇచ్చే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధులు కోసం 5 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ నిధుల వినియోగానికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం త్వరలో విడుదల చేస్తుంది. ఎమ్మెల్యే మరియు ఎమ్మెల్సీలకు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధుల కోసం ఈ బడ్జెట్లో 800 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తుంది. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అన్నట్లు ధ్యేయం పట్ల నిలువెల్ల అంకిత భావం కలిగిన వ్యక్తులు సమాజాన్ని ముందుకు నడిపిస్తారు. ఈ మాటను నిజం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు షెడ్యూల్డ్ కులాల ప్రజల సర్వతోముఖాభివృద్ధి కోసం నూతన పథకాన్ని రూపొందించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్లో వ్యయం దళిత్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రాంను ప్రవేశపెడుతోంది. ఈ నూతన పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలో షెడ్యూల్డ్ కులాల ప్రజలకు పెద్ద ఎత్తున ప్రయోజనాలను కలిగించబోతున్నది. గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా బ్రహ్మాండమైన ఉప్పినటువంటి వాణిజ్య సేవల రంగం, సమాచార రంగం, సాంకేతిక రంగం, స్థిరాస్తి నిర్మాణ రంగాలు కరోనా కారణంగా ఒక్కసారి కుప్పకూలిపోయాయి. కరోనా ప్రభావాన్ని తట్టుకొని నిలబడిన ఒకే ఒక్క రంగం వ్యవసాయం. కరోనా కష్టకాలంలోనూ తెలంగాణలో వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి క్రియాశీలకంగా ఉందని ఘంటాపథంగా చెప్పొచ్చు. గత ప్రభుత్వాలు దండగాని ఈసడించిన వ్యవసాయమే నేడు కరోనాను తట్టుకొని అభివృద్ధిని సాధించింది. రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యవసాయం, దాని అనుబంధ రంగాల్లో తీసుకున్న ఉద్దీపన చర్యల వల్లనే ఇది సాధ్యమైందని గమనించాలి. వ్యవసాయ రంగంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న ప్రగతిశీల చర్యలేవి ఊరికే పోలేదు. పెట్టిన ప్రతి పైసా సార్థకమైంది అని అనడానికి ఈ ఆపత్కాలంలోనూ వ్యవసాయ రంగం నమోదు చేసిన అభివృద్ధి గణాంకాలే నిదర్శనం. తెలంగాణ నేడు సాగు విస్తీర్ణం రికార్డు స్థాయిలో పెరిగింది. 2014-15లో ఉన్న సాగు విస్తీర్ణం 1,41,00,000 ఎకరాలు కాగా 2020-21 సంవత్సరంలో అది 2,10,00,000 ఎకరాలకు పెరిగింది. అంటే 49% పైగా వృద్ధి నమోదైంది. అదేవిధంగా పంటల ఉత్పత్తి 2014-15 సంవత్సరంలో 2,05,00,000 మెట్రిక్ టన్నులు నమోదు కాగా అది 2020-21లో రికార్డు స్థాయిలో 4,11,00,000 మెట్రిక్ టన్నులకు పైబడి వస్తుందని అంచనా వేస్తుంది. అంటే గతంతో పోలిస్తే పంటల ఉత్పత్తి రెట్టింపు అవుతుంది. తెలంగాణలో రైతులు ఈ ఏడాది रियासत हुकूमत ने अपनी मकबूल आम कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के लिए साल 2021-22 के लिए 2,750 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने अपनी बजट तकरीर में बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गरीबी की वजह से जो वालिदीन अपनी बेटियों की शादी करने के लिए मुश्किलात का सामना करते हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। वाज़ेह है कि रियासत हुकूमत ने अपनी इस स्कीम के तहत गरीब लड़की की शादी पर 1,116 की इमदाद देती है। हरीश राव ने बताया कि हुकूमत इस स्कीम के आगाज से अब तक 6,480 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, जिससे 8,04,524 को फायदा पहुंचा है। साल 2021-22 के रियासती बजट में अक़लियतों के लिए गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगरचे के 465 करोड़ रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की गई है, लेकिन अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों में बजट को लेकर काफ़ी मायूसी और बरहमी पाई जाती है। आम मुसलमानों का तासुर है कि हुकूमत हर साल बजट में रकूमात में इजाफा करने के बजाय मुख्तस करदा पूरी रकम ही जारी कर दे और खर्च की जाए तो ये मुसलमानों की सबसे बड़ी खिदमत होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल
बजट में अखिलतों के लिए 1137 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 800 करोड़ रुपए जारी किए। सितम बाला सितम ये कि 800 करोड़ में से भी सिर्फ 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि कोविड-19 के बहरान के दौरान सबसे ज्यादा परेशान हाल मुसलमान ही रहे। अक्टूबर की तूफानी बारिश और सैलाब की तबाहकारियों ने गरीब मुसलमानों की कमर तोड़ के रख दी थी। ऐसे में हुकूमत की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की गई। రూపాయలను ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పథకం కింద మంజూరు చేసింది. 54 మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు 1054 కోట్ల రూపాయలతో పక్కా భవనాల నిర్మాణం జరుగుతోంది. రంజాన్, క్రిస్మస్లను రాష్ట్ర పండుగలుగా ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా 7 లక్షల మంది పేద ముస్లిం క్రైస్తవులకు ప్రభుత్వం నూతన వస్త్రాలను పంపిణీ చేసింది. పండుగల సందర్భంగా సామూహిక విందులు ఏర్పాటు చేసి వారి సంతోషంలో పాలు పంచుకుంటున్నాం. మైనార్టీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా మైనార్టీ వర్గాల వారికి ప్రత్యేకమైన అండదండలు అందిస్తున్నాం. మైనార్టీ యువతకు స్వయం ఉపాధి రుణాల్లో సబ్సిడీని అందజేస్తున్నాం. షాదీ ముబారక్ పథకం కింద 1,75,924 మంది లబ్ధి పొందారు. దీనికి గాను 1,341 కోట్ల రూపాయలను ఇప్పటి వరకు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. మైనార్టీ సంక్షేమానికి 2008 నుంచి 2014 మధ్యకాలంలో 812 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే గడిచిన 6 ఏళ్లలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం 5,712 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసింది. ఈ బడ్జెట్లో మైనార్టీ సంక్షేమానికి 1,606 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తుంది. తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి బతుకుదెరువు కోసం గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న తెలంగాణ కార్మికులను సానుభూతితో ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం కేరళ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ప్రత్యేక బృందం పర్యటించి వచ్చింది. ఆ బృందం ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా రాబోయే రోజుల్లో గల్ఫ్ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. మహిళల ఆరోగ్యం, భద్రతతో పాటు వారి విద్యా వికాసాలకు కూడా ప్రభుత్వం సమాన ప్రాధాన్యతనిస్తోంది. గర్భిణీలకు పూర్తి విశ్రాంతి అవసరం. ఆ దశలోనూ పనిచేసే అగత్యాన్ని ఏ స్త్రీ ఎదుర్కోకూడదు. అది గర్భిణీకి మాత్రమే కాకుండా గర్భస్థ శిశువుకు ప్రమాదకరం. మానవీయతకు మారుపేరైన కేసీఆర్ గారు గర్భిణీ స్త్రీ పని చేయలేక కోల్పోయే వేతనాన్ని ప్రభుత్వమే చెల్లించాలని నిర్ణయించారు. కేసీఆర్ కిట్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. గర్భాధారణ నుంచి ప్రసవం జరిగే వరకు 3 దశల్లో 4,000 చొప్పున మొత్తం 12,000 రూపాయలను ప్రభుత్వం గర్భిణీలకు చెల్లిస్తోంది. పుట్టింది ఆడ శిశువైతే అదనంగా మరో 1,000 రూపాయలు ఇచ్చి 13,000 రూపాయలను అందజేస్తోంది. ఈ పథకం వల్ల ఆసుపత్రి ప్రసవాలు పెరిగాయి. బాలింత శిశు మరణాల సంఖ్య చాలా వరకు తగ్గింది. ప్రసూతి ద్వారా తల్లికి పిల్లకు ఉపయోగపడేలా 15 వస్తువులతో కేసీఆర్ కిట్ను ప్రభుత్వం. रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने बताया कि हैदराबाद के तरक्याती प्रोजेक्टों और अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए साल 2021-22 के बजट में 1,425 करोड़ रुपए की भारी रकम मुख्तस की गई है। असेंबली में बजट की पेशकश के दौरान उन्होंने बताया कि 250 करोड़ रुपए हर घर को पीने का पानी फराहम करने के लिए रखे गए। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान 300 किलोमीटर की सड़कों की तामीर हुई है और दूसरे काम भी मुकम्मल किए गए, जिस पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि शहर में रोजाना 55,000 अफराद को 5 रुपए में खाना फराहम किया जा रहा है। పేదల ఆకలి తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం నగరంలో 179 అన్నపూర్ణ సెంటర్ల ద్వారా ప్రతిరోజు 55,000 మందికి 5 రూపాయలకే చక్కటి భోజనం అందిస్తోంది. ఇటీవల జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల సందర్భంగా నగరవాసులకు మంచినీటిపై ఇచ్చిన హామీని ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకుంది. ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం 20,000 లీటర్ల సురక్షిత మంచినీటిని ఉచితంగా అందిస్తోంది. దీనికి ఎలాంటి బిల్లు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. దీనివలన పేద మధ్యతరగతి ప్రజలపై వాటర్ బిల్లుల భారం తగ్గింది. ఉచిత మంచినీటి సరఫరా కోసం ఈ బడ్జెట్లో 250 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తోంది. హైదరాబాద్ ప్రజల భవిష్యత్తు, తాగునీటి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నాగార్జున సాగర్ సమీపంలోని సుంకిశాల నుంచి హైదరాబాద్కు నీటిని తరలించడానికి ప్రభుత్వం కొత్త ప్రాజెక్టును నిర్మించనుంది. దీనికోసం 1,450 కోట్ల నిధులు ఖర్చవుతాయని అంచనా వేస్తోంది. ఈ బడ్జెట్లో సుంకిశాల వద్ద నిర్మించే
తాగునీటి ప్రాజెక్టు కోసం 725 కోట్ల నిధులను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తోంది. మూసీ నది పునర్జీవనం కోసం, మూసీ పరిసరాల సుందరీకరణ కోసం ఈ బడ్జెట్లో 200 కోట్ల నిధులను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తోంది. మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు కోసం ఈ బడ్జెట్లో 1000 కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదిస్తోంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధి లోపల కొత్తగా ఏర్పడిన కాలనీలకు తాగునీటి సరఫరా కోసం 250 కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదిస్తున్నాం. వరంగల్ కార్పొరేషన్లో వివిధ అభివృద్ధి పనుల కోసం 250 కోట్ల రూపాయలు, ఖమ్మం కార్పొరేషన్కు 150 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తోంది. ఈ బడ్జెట్లో పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖకు మొత్తం 15,030 కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదిస్తున్నాం. కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,200 కరోనా పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రతి 10 లక్షల జనాభాలో 2,11,000 జనాభాకు కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించింది. ఐసోలేషన్ సెంటర్లు, మందులు, బెడ్లు, ఆహారం మొదలగు అవసరాల కోసం 1,178.28 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసింది. కరోనా సమయంలో రాష్ట్రంలోని పేద ప్రజలకు, వలస కూలీలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలిచింది. ఉన్నతమైన మానవీయ కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది. లాక్డౌన్ మొదలైన మొదటి 3 నెలలు ప్రతి వ్యక్తికి ఉచితంగా 12 కిలోల రేషన్ బియ్యాన్ని అందించింది. ఆ తర్వాత కూడా 5 నెలల పాటు 10 కిలోల బియ్యం ఉచితంగా అందించింది. రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి 2 నెలల పాటు 1,500 రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని నేరుగా వారి ఖాతాల్లో జమ చేసింది. దీనికి గాను 2,455 కోట్ల రూపాయలు. रियासत के सम्मेलन में बीजेपी के फ्लोर लीडर रघुनंदन राव ने रियासत के बजट साल 2021-22 को गैर हकीकत पसंदाना करार दिया और सवाल किया कि हुकूमत ने 2,30,000 करोड़ रुपए का तखमीना बजट पेश किया है, लेकिन उसके लिए ये रकम कहां से आएगी। असेंबली के बाहर मीडिया वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत और खर्च में मुब्तला हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खर्च करने के लिए आमदनी भी होनी चाहिए, मगर हुकूमत ये बताने से कासिर है कि आखिर आमदनी कहां से पैदा की जाएगी। कोविड-19 के चलते हुकूमत को दरकार टैक्स वसूल नहीं हुआ। रघुनंदन राव ने कहा कि वजीर फाइनेंस ने हिंसों को बढ़ाकर आवाम को खुश करने की कामयाब कोशिश की है। पूरा रेवेन्यू पूरा खत्म हो गया। मैं नहीं बोल रहा है बात। कल असेंबली में गवर्नर जी का प्रसंग का धन्यवाद का दीपान में मुख्यमंत्री जी बोला, एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, कहाँ से देना हम लोग निरुद्योग अभिवृद्धि बोल के सीएम साहब ने फ्लोर में बोल दिया। फिर आज कल से लेकर आज तक आए तक कहाँ से आ गए 2,30 करोड़ 825 करोड़ का बजट कहाँ से आ गए। कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में रेवेन्यू किधर से आ रहा है, कहाँ से लेके आ रहे हैं पैसे। आप क्या डेब्ट ले रहा, बैंकों से लोन ले रहा, हम वही बोल रहा है। हर साल में 50,000 1 लाख करोड़ रुपए डेब्ट लेके आप पैसे किधर बांट रहा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 1 रुपए नहीं दिया, उस्मानिया दवाखाना को 1 रुपए नहीं दिया। हैदराबाद में परसों बारिश गिरे तो आप लोग देखिए रोड के ऊपर बस कार चलने की जगह पूरा बोट चलना पड़ा। हैदराबाद का डेवलपमेंट के लिए क्या करने वाला है, HMDA को कैसा डेवलप कर रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं। ये सब बगैर पैसे आप जो भी बोलो, आप सुनने के लिए अच्छे बात बोलते बोले तो ऐसे ही दिख रहा है। इनकम कहाँ से आ रहा है, रुपए पैसे कहाँ से आ रहा है स्टेट। जब मालूम हो गए तो पैसा कैसा खर्च करना मालूम होगा। आने का रास्ता ही नहीं बता रहे, अब खर्च करने का रास्ता बता रहे, तो आने का पैसा नहीं है तो कल के दिन खर्च करने का जगह कैसे मिलता है। ये पूरा एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली सुनने के लिए अच्छा रहना बोल के एक अच्छा बजट गणांक अच्छा प्रकटित किया, मगर होने वाला दिन में आने वाला दिन में इसमें कुछ शामिल होता बोल के तो मेरे लिए नहीं। जेब में पैसे नहीं है तो कहाँ से लाना, इसके दोस्त के पास से बारो करना, बैंक से लोन लेना, वही करना पड़ता स्टेट गवर्नमेंट को। मैं वही पूछूँ, गए 100 साल का बजट से मैं ये सोचा था कम होता है इस साल का बजट, क्यों बोले तो रेवेन्यू कम है ना। जब रेवेन्यू नहीं है तो आप क्या करेगा। कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में आपके पास रेवेन्यू कैसा बढ़ रहा है, आप कहाँ से लेके आए थे पैसे। फिर एक बार बैंक को जाना, फिर एक बार डेब्ट लेना, ये होने वाला है। मेरा ये है यकीन है, मैं विश्वास करता हूँ और 3 साल में ये 1 लाख रुपए तक चले जाए। फायदा हो ऐसा बच्चे के ऊपर, हर बच्चे के ऊपर 1 लाख रुपए तक बजट चले जाए। थैंक यू। अहमदाबाद में आयशा आरिफ खान की खुदकशी के वाक़े ने सारी उम्मत मुसलमा को झंझोड़ कर रख दिया है और जहेज की लानत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुल्कगीर मुहिम शुरू करना नागुज़िर हो गया है। हैदराबाद की खदीम इल्मी दरसगाह जामिया निज़ामिया के फारिग तहसील उलमा और खतीब साहिबान ने जुमा व नमाज से शहर की मसाजिद में अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम के आगाज़ का फैसला किया है।
जिसके दौरान अइम्मा और खतीब साहिबान अपने खुतबात जुमा में इस फरसूदा रस्म और उसके नुकसानात पर रोशनी डालेंगे। साबिक सदर शोबे अरबी जामिया उस्मानिया प्रोफेसर अब्दुल मजीद निजामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस समाजी मसले का हल निकालना उलमा और खतीब साहिबान की जिम्मेदारी है। जहेज की लानत की वजह से हजारों लड़कियां बिन ब्याही घरों में बैठी हुई हैं। शादी में इसराफ से समाज माशी तौर पर दिवालिया का शिकार हो रहा है। जामिया निजामिया के फारूक तहसील उलमा की तंजीम जामिया निजामिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना असलम जावेद नक्शबंदी, मौलाना सैयद तौफीकुल हुसैनी, मौलाना हाफिज खालिद नक्शबंदी, मौलाना अब्दुल बारी साजिद निज़ामी, मौलाना तजम्मुल अहमद, डॉक्टर मिर्ज़ा रहीम बेग, मौलाना मिर्ज़ा शफीउल्लाह बेग और दूसरे भी मौजूद थे। गैर जरूरी के मुतालिबात किए जाते हैं, इसकी वजह से कई मुस्लिम लड़कियां जो है बिन ब्याही घरों में बैठी हुई है। ये मुस्लिम मुआशरे के जिम्मेदारों को चाहिए कि बस पर गौर फिक्र करें। बतौर खास हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मुस्लिम मुआशरे की खवातीन से, हमारी उन माँ और बहनों से भी हम अदबन दरख्वास्त करते हैं कि वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी अपना किरदार निभाए मुआशरे की इस्लाह के अंदर। कि वो एक माँ अगर अपने बच्चे को एक अच्छा जहन दें या अच्छी तरबियत करें तो यकीनन वो माँ उसके हक़ में एक बेहतरीन एक मिसाली माँ साबित हो सकती है। तो आज लोग बोल रहे हैं कि एक मिसाली शादी किया जाए, मिसाली शादी का एक अहतमाम किया, वो कैसे हो सकता है? एक माँ उसके अंदर ये चीज़ पैदा कर सकती है, एक बहन जो है इस पर काम कर सकती है, एक वालिद जो है ना इसके ऊपर जो है ना अमली तौर पर जो है बच्चों की जहन साजी कर सकते हैं। तो ये वो सारे पहलू हैं जिस पर जो है हमारे मुस्लिम मुआशरे को गौर करने की ज़रूरत है। नबी इसी तरीके से ये जहेज के साथ जो वाबस्ता एक दूसरा मौजू है वो है खुदकुशी। इसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि खुदकुशी के वाक़यात होते हैं। मतलब ये सिर्फ इसी वजह से नहीं है, ये भी एक असबाब में से ये भी एक सबब है। तो यहाँ पर हम उन हजरात को कि जिन पर जुल्म और सितम हो रहा है, हम कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ आप गर्दन मत झुकाइए, आप जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करिए और उस जुल्म की वजह से अपनी जान को समझो खत्म कर देना, ये इस्लाम इस चीज को पसंद नहीं करता। एक हदीस में कोट कर रहा हूँ कि रसूल रहमत पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने किसी भी चीज के साथ खुदकुशी की वो तो जहन्नम की आग में हमेशा उसी के साथ जो है अज़ाब में मुब्तला रहेगा। तो ये खुदकुशी एक संगीन जुर्म है। यकीनन हालात ऐसे बना दिए जा रहे हैं कि लोग जो है ना ये कदम उठाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है यकीनन ये सारे मजलिस असम्बली अहमद पाशा खाजरी ने बद्दी डिवीजन पत्थरगट्टी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मोरज इल्तवा कामों की अदलाना तकमील पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सारे काम मानसून के आगाज से पहले मुकम्मल कर लिए जाने चाहिए ताकि आवाम को गुज़िश्ता साल की तबाहकारियों जैसी सूरत हाल का सामना करना न पड़े। इस दौरे में जिसमसी अहदेदारों के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद महमूद सुहेल खादरी भी उनके हमरा थे। काम के लिए एक अरसे दराज से जेर इल्तवा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हो चुका, काम का आगाज होने वाला है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन मीर साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर एक 2 रोज के अंदर काम का आगाज होगा। आज उसका सर्वे मुताल्लिका इंजीनियर्स के साथ किया गया, गुत्तेदार के साथ भी। तो ये नाला इसको डीप कर रहे हैं और इसको ऊपर इसके ऊपर रोड आएंगी, सिला पाएंगे और ये रोड काफी बड़ी हो जाएंगी। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का मसाइल है, ट्रांसफार्मर बीच में है उसको बाजू करने का है और ऐसा बाजू करेंगे जिससे ट्रैफिक में कोई रुकावट ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। और ये ट्रांसफार्मर नस्ब होने के बाद रोड काफी वसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, लारियां जा सकते इतनी बड़ी रोड होंगी यहाँ की। बहरहाल एक अरसे से ये देर इल्तवा था, काम मंजूर हो चुका है, 1-2 रोज में इसका आगाज होगा। और ये बॉर्डर के कारपोरेटर सुहेल खादरी साहब और अब्दुल वासे साहब और यहाँ के मुकामी इब्तदाई के लोग तमाम ये कामों की यकसी के लिए दिलचस्पी रखते हैं, कामों की निगरानी करेंगे मुकामी तौर पर। काम जल्द शुरू होगा और इंजीनियर्स का बताना है कि मानसून से पहले काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर बारिश में नाला ओवरफुल होके रोड पे पानी आ गया था, काफी घुटनों बराबर पानी था, कुछ घरों में भी गया। वो शिकायत फिर दोबारा नहीं होना बोल के ये काम की मंजूरी ली। बड़ा बाजार बारकस में मलून वसीम रजवी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरीन वसीम रजवी के खिलाफ नारे लगा रहे थे और उनका मुतालबा था कि हुकूमत उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर वसीम रजवी को फिलफौर गिरफ्तार करे। उनका कहना था कि FIR के इंदराज के बाद उसे मजीद कोई मोहलत न दी जाए।
बल्कि उसे फौरी सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि पुलिस कई मामलात में फुर्ती का मुजाहरा करती है और एफआईआर दर्ज करने के चंद घंटों के बाद ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेंगलुरु में टूल किट की मुलजिमा दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने रातों रात बेंगलुरु पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि वसीम रजी के मामले में एफआईआर पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। चंदनगुट्टे में एक 20 साला खातून चारशंबे की शाम से लापता है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मदी हिल्स की तायरा बेगम काम से बाहर जाने का कहते हुए घर से निकली थी, लेकिन शाम देर गए तक घर वापस नहीं हुई। पुलिस ने मां की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करे। अदालत ने हुकूमत से कहा कि जिन इलाकों से कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन करार दिया जाए और रोजाना लाजमन 50,000 कोविड-19 टेस्ट किए जाएं। हाईकोर्ट में एक दरखास्त गुजार ने बताया था कि हुकूमत ने 7, 11, 12 और 13 मार्च को कोविड-19 टेस्ट से मुतालिक मालूमात पर कोई बुलेटिन जारी नहीं किया। एमएलसी की इंतखाबी मुहिम और रायदही के दौरान भी कोविड-19 गाइडलाइंस की पाबंदी नहीं की गई। उसने अदालत से अपील की थी कि वो इन हालात के पेश नजर सख्त इकदाम की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाए। तेलंगाना प्रिजन्स के साबिक डीजीपी वीके सिंह ने, जिन्हें पंजाब हुकूमत ने अपना मुशीर मुकर्रर किया है, ऐलान किया कि वो सुनहरे तेलंगाना के लिए अवामी तहरीक शुरू करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वीके सिंह ने कहा कि बदउनवानियों के खात्मे और साफ और शफाफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हर किसी को आगे आने की जरूरत है। वो सियासी ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन अवामी खिदमत को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि दौरान मुलाजिमत रियासती हुकूमत ने कई तरीकों से उन्हें हिरासा किया, उनके वजीफे और ग्रेजुटी को भी रोक दिया गया था। उनके खानदान वालों को मुख्तलिफ उन्वानात के तहत तंग भी किया गया, लेकिन उन्होंने अपना हौसला और अज़म बरकरार रखा। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्ली भट्टू विक्रमाका ने रियासती बजट को गुमराहकुन और आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश से ताबीर किया। असम्बली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए मल्लू भट्टी विक्रमाका ने कहा कि बजट से अंदाजा होता है कि रियासत का खर्च और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि जब हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद का कोई कारनामा अंजाम ही नहीं दिया तो फिर रियासत किस तरह मखरूज हो गई। बजट में दलितों की तरक्की के लिए किसी मंसूबे का जिक्र नहीं किया गया और न ही डबल बेडरूम मकानात का कोई तस्करा है। इस मौके पर अरकान असम्बली बी वीरैया, कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। प्रिंस मौजमजा बहादुर की पोतरी प्रिंसेस शाफिया सकीना ने बंजारा हिल रोड नंबर 3 पर वाक़े उनकी आबाई जायदाद माउंट प्लेजेंट में अपने हिस्से की मांग की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उन्हें उनका हक दिलाए। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माउंट प्लेजेंट की 24 एकड़ 10 गुंठे अराजी पर सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी कई इदारे कायम कर चुकी है और उसका दावा है कि उसने मौजमजा बहादुर ट्रस्ट से इस जायदाद को खरीदने का मामला किया है। प्रिंसेस शाफिया ने कहा कि दरअसल सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी ने इस अराजी पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को मज़कूरा अराजी उसके हकदारों की इजाज़त के बगैर फरोख्त करने का इख्तियार नहीं है। प्रिंसेस सकीना शाफिया ने कहा कि वो इस मामले को अदालत में भी ले जा रही हैं। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने रियासती असम्बली के अहाते में विजय डेयरी के आउटलेट का इफ्तिताह किया, जहाँ अरकान असम्बली और असम्बली के स्टाफ के लिए दूध, दही, घी, आइसक्रीम के अलावा विजय डेयरी के कई दूसरे प्रोडक्ट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब रहेंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि विजय डेयरी सख्त मुसाबकत के बावजूद अपनी कीमत और मियाद पर कोई समझौता नहीं किया। भैंसे में एक 4 साला लड़की की असमत रेजी के खिलाफ बीजेपी के कारकुनों ने एलबी नगर चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। साबिक वजीर और बीजेपी की कौमी नायब सदर डी के अरुणा ने क़यादत की। धरने की वजह से इस मसरूफ तरीन शाहराह पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। डी के अरुणा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और लड़की के वालिदैन को 10 लाख रुपए की ग्रेशिया मंजूर करे। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि खुदकुशी मायूसी और कमजोरी की अलामत है और उससे मुकाबले की जरूरत है। महमूद अली इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से रविंद्र भारती में मुनक़िदा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे, जिसका उन्वान खुदकुशी न कीजिए, जिंदगी एक नेमत है था। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यू श्रीनिवास गुप्ता, डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स एम हरिकृष्णा और दूसरों ने भी खिताब किया।
फाउंडेशन के बानी सदर सामल रेड्डी ने सदारत की। कोरोना वायरस की नई लहर से रियासत के तालीमी इदारे खासकर अकामती मदारिस बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मंचियाल में जिला परिषद स्कूल के 56 तलबा और असातिज़ा, बंदलागुड़े के अखिलती अकामती स्कूल में 38 तलबा के मुतासिर होने के बाद जिले निर्मल के भाषा टाउन में 140 तलबा के मुतासिर होने की इत्तलात मिली है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए तैनात पुलिस फोर्स में भी कोरोना वायरस की अलामत पाई गई हैं, जिसके बाद उनके टेस्ट किए गए। इनमें से एक पुलिस एहलकार में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। कौंसल जनरल अवामी जमहूरिया अफगानिस्तान की तरफ से होटल ट्रेडेंट मादापुर में 10 अप्रैल अफगानी फूड फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है, जहां हैदराबादी अवाम को अफगानी खानों से मुतारिफ करवाने के साथ साथ अफगानी मसनूआत, अफगानी खालीन और ड्राई फ्रूट भी फरोख्त के लिए रखी जाएंगी। इस फेस्टिवल में अफगानी फिल्मसाज सारा करीमी के बशमूल कई फिल्मी शख्सियतें शिरकत करेंगी। कौंसल जनरल ने बताया कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कदीम ताल्लुकात हैं, इस फेस्टिवल से उसको मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की तामीरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। ज़रई और मवासलात के शोबे में हिंदुस्तान से अफगानिस्तान को काफ़ी ताउन मिल रहा है। गांधी हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली पुष्पा ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसे उसके साथी स्टाफ अरकान ने नाकाम बना दिया। पुष्पा अपनी मुलाजिमत को लेकर एक अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। चुनाचे वो गांधी हॉस्पिटल की छत पर चढ़ गई और छलांग लगाने की कोशिश की। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने रियासती बजट साल बराए 2021-22 को मुआफ़िक किसान बजट करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां किसानों के लिए इतनी बड़ी रकम मुख्तस की गई है। निरंजन रेड्डी ने हौसला अफजा बजट की पेशकशी पर वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद भी दी। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 278 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 3,02,047 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 3 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह रियासत भर में 1,662 अफराद कोविड-19 से फौत हो चुके हैं। महकमा सेहत की प्रेस नोट में बताया गया कि मंगल और चारशंबे के दरमियान रियासत में 59,905 कोविड-19 टेस्ट किए गए। जीएचएमसी हुदूद में सबसे ज़्यादा 35 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरे शदीद मुतासर अजला में आदिलाबाद भी शामिल है, जहां 28, निर्मल में 24 और मेडसर मलकाजगिरी में 21 केसेस रिपोर्ट हुए। एक अनोखे वाक़े में ट्रैफिक पुलिस ने उड़ीसा के गंजाम जिले में एक लारी ड्राइवर को बिना हेलमेट लारी चलाने का चालान काट दिया। हालांकि सबको मालूम है कि लारी चलाने के लिए हेलमेट का कोई लुज़ूम नहीं है। ये दिलचस्प इंकशाफ उस वक्त हुआ जब लारी का मालिक प्रमोद कुमार अपनी लारी के परमिट की तजदीद के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट से रुजू हुआ, जहाँ हुक्काम ने बताया कि वो 1,000 रुपये के चालान की रकम बाकी है। ये चालान 24 दिसंबर 2020 को काटा गया था। मरकजी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में बताया कि मुल्क की जीडीपी में आईटी शोबे का 8% हिस्सा है और 2019 से इस शोबे में 2 लाख नई मुलाजमतों का इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत मुल्क भर के तमाम गाँवों को भारत नेट से जोड़ने की कोशिश कर रही है और वज़ीर चाहते हैं कि काम 1000 दिन में मुकम्मल कर लिया जाए। Brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.